So now welcome to class 11th. We were discussing about chapter number 5, morphology of flowering plants. Okay. So in continuation of this chapter, we have already studied about root morphology and stem morphology and along with their modification also. So let's discuss now today about leaf. Okay. So first of all, what is leaf? I think this picture will be very much clear to you people. So how it looks like, कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसा ये ग्रीन है. सो लीफ इज ग्रीन इन स्ट्रक्चर. नंबर 2, it is having a pattern of different arrangements of its veins and wavelets. Okay, first of all it is flat. Number 2, green in structure, that is chlorophyllous, and from where it arises, कहाँ से arise होता है, तो आप इसको देख लो एक बार. So let me show you one. Suppose this is a plant here. So leaf is arising from a particular part of the stem, and this part is nothing, it is node. जैसे कि आपने पहले पढ़ चुका है. And this area is known as, this part of the stem is known as internode. And again node is there, and there will be a production of flowers and buds or leaves, etc. So it arises from the node part of the stem. Number 2, it is green in structure, varies in shape, and performs the function of photosynthesis, and totally almost flat in appearance and smoothly to touch in most of the cases. Okay. So now we will discuss today about the parts of leaf. Okay. So leaf के कौन कौन से parts हैं? So सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल में हमने यही लिखा हुआ यहाँ पे, तो सपोज यही लीफ है और ये देखो कहाँ पे अटैच है, तो जहाँ पे अटैच था स्टेम के साथ, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लीफ बेस. ओके. सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लीफ? नंबर 1, लीफ बेस. लीफ बेस यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो सपोज यहाँ पे ये अटैच था स्टेम के साथ, तो ये हो गया हमारा लीफ का बेस. ओके. सो लीफ बेस इज हियर, so by which it is attached to the stem. So leaf base may be swollen sometime, and that swollen leaf base is known as pulvinous. ठीक है. यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो ये जो swollen leaf base जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, तो समटाइम्स जैसे पी प्लांट में है तो उनका थोड़ा सा swollen होगा लीफ बेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनस. ओके. सो फर्स्ट पार्ट इज लीफ बेस. लीफ बेस में हम क्या लिखें? नंबर 1 लोअर मोस्ट पार्ट है. नंबर 2 अगर स्वोलन है देन इट इज नोन एज पल्विनस. और कहाँ पे प्रेजेंट है? अलॉन्ग विद द नोडल पार्ट ऑफ द स्टेम. और लीफ बेस कई बार क्या होता है किसी किसी प्लांट्स में, या हम कह लो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स में, जैसे मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स में जो लीव्स है समटाइम्स इट इज कवर्ड विद सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. Okay, so these are known as stipules. यहाँ पे हम लेबल करेंगे इसको stipules. Okay, leafy structures. So it is covered with the leafy structures. Leaf base that is known as stipules. So example आप रीट में देख लेना चाहिए, ठीक है, उसका भी आप लीफ देख सकते हैं. तो stipules को हम क्या फिर वर्डिंग बोल सकते हैं? लेटरल स्ट्रक्चर्स. कितनी हैं? 2 लेटरल स्ट्रक्चर्स. क्या कर रही हैं ये? इसके सेंटर में तो लीफ बेस है, तो लीफ बेस को ये प्रोटेक्ट कर रही है. Okay, they are protecting the leaf base. Okay. So once again, what is leaf base? It is a lowermost part. कहाँ होता है? Along the node, and sometimes it may be pulvinous, that is swollen in structure and known as pulvinous. And in monocots it is covered with 2 leafy structures, and these leafy structures are known as stipules. It was all about the leaf base. Now come to the this stalk-like portion of the leaf, and it is known as petiole. ये जो डंडी है इसकी, जिससे ये हवा में वेरिएट करता है, घूमता है, नाचता है प्लांट्स के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीटीओ. ओके. सो दिस इज नोन एज पीटीओ. तो इलोंगेटेड है, किसके साथ अटैच है? लीफ के आगे वाले पोर्शन के साथ, और आगे वाले पोर्शन का नाम है लैमिना. सो इट इज अटैच्ड विद लैमिना. क्या करता है? अगर पीटीओल नहीं होगा तो ये पीटीओल जो है लीफ को थोड़ा उसको हवा में और सन में उसको डायरेक्शन देगा. इट विल एक्सपोज द लीफ टुवर्ड्स सनलाइट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके. सो एक्सपोजर देगा ये सनलाइट को, विंड को, उसमें मूवमेंट करने, एंड मोस्टली इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकेज ऑफ द लीव्स.
अगर कई बार एडवर्स कंडीशन हो जाती है देन इट प्रोटेक्ट्स द लीफ फ्रॉम द सडन ब्रेकेज. ओके, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज लैमिना. दिस वन होल ग्रीनिश पार्ट, द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इज नोन एज, फ्लैटेंड बोल दो, ग्रीन पार्ट बोल दो, लार्जेस्ट पार्ट बोल दो, और जो मेन पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, लैमिना. और देखो यहाँ पे इस केस में जरूरी नहीं है कि हर एक लीफ में ऐसे होगा. इस केस में जो लैमिना की टिप है दैट टेपर्स एट वन साइड. ओके, सो दिस इज लैमिना. और जो लैमिना के ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है यहाँ पे. सो दीज आर नोन एज मार्जिन्स. ऑल दीज ट्विस्टेड पार्ट इज नोन एज मार्जिन्स. और सेंटर में लीफ की एक मेन वेन जा रही है. दिस इज द सेंट्रल, इसको डिवाइड कर रही है. दिस इज नोन एज मिड रिब. दिस इज नोन एज मिड रिब. एंड अलॉन्ग मिड रिब देयर आर सो मेनी ब्रांचेस. इसकी और भी ब्रांचेस हैं काफ़ी सारी. दीज आर नोन एज वेन्स. और वेन्स का आगे अगर हम इसको मतलब उसको माइक्रोस्कोपिकली या बड़े ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखेंगे तो इसके आगे और नेटवर्क स्ट्रक्चर है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज वेनलेट्स. ओके, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया वेन सेंटर वाली मिड रिब, उसकी ब्रांचेस वेन्स, एंड उसके आगे फर्दर ब्रांचेस क्या होंगी, वेनलेट्स. एंड दिस टिप पार्ट इज नोन एज एपेक्स. सो दिस टिप पार्ट इज एपेक्स. दिस इज लैमिना एंड दीज आर द मार्जिन्स. ओके, तो ये वाली होगी हमारी मिड रिब, और ये वाले क्या होंगे, वेन्स, और उसके अंदर वाले क्या होंगे, वेनलेट्स. ओके, अब ये सारा जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या है साइंटिफिकली, इसमें जो मेन, अगर हम इसको फिजियोलॉजिकली इसका फंक्शन देखें या एनाटॉमिकली इसको देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो यहाँ तक जो वाटर कंडक्शन है वो लीव्स तक पहुँच जाएगा अलॉन्ग विद जाइलम एंड ओके फ्लोएम. तो ये जो सारा जाइलम टिश्यूज हैं इसमें, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, वो इसको वाटर कंडक्शन में, फूड कंडक्शन में हेल्प करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीव्स. ओके, नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ लीफ. फंक्शन क्या क्या है, आपको क्या लगता है लीफ क्या करता है? नंबर वन तो ब्यूटी ऐड करता है. ठीक है, कोई भी पेड़ है उसको, पेड़ को एक प्लांट को बड़ी अच्छी मतलब अपीयरेंस देता है, उसको ब्यूटीफाई करता है, देखने में सुंदर लगता है. दूसरा है फोटोसिंथेसिस करता है. वो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है. फूड प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ओके, तो फोटोसिंथेसिस हो गया इसका फंक्शन. तीसरी चीज़ आपने सुना होगा नाम स्टोमेटा का, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है. तो स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर है, जो एक्सचेंज है विद एनवायरनमेंट, दैट इज थ्रू द स्टोमेटा. एंड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. वाटर लॉस जो होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो थ्रू द स्टोमेटा. जो ट्रांसपिरेशन से प्लांट में तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है. तो कई बार क्या होता है कि लीफ कुछ मॉडिफाइड हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ में नेक्स्ट टॉपिक में. तो वो जो मॉडिफाई होकर वो अलग अलग फंक्शन करता है. देख क्या पता वो किस तरह मॉडिफाई हुआ, कई बार स्टोरेज कर लेता है, कई बार प्रोटेक्शन में हेल्प कर देता है, कई बार वो कांटेदार स्ट्रक्चर बना लेता है. ओके, तो वो स्पाइंस वगैरह वो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे फंक्शंस में ऐड कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ मॉडिफाइड देन इट विल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस. ओके, तो जनरल फंक्शंस तो हैं ही है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ब्यूटी ऐड करता है प्लांट्स को. ओके, लेकिन जनरल फंक्शंस के अलावा इसके स्पेसिफिक फंक्शंस भी हो जाते हैं व्हेन इट इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस एज पर द मॉडिफिकेशंस. ओके, सो आई होप दिस small topic will be clear to you. And now we are discussing about the types of leaves. I will show you one leaf in my garden which is eaten by some insects, and it is clearly showing the type of venation. Okay, so let me show. See here, in this case the whole chlorophyllous area is eaten by some insects, and now the leaf is showing just venation. Okay, one minute. Now the leaf is showing this all veins and mid ribs. It is very much clear from this structure. Okay, so देखो आपको इसमें मिड रिब भी नजर आ रही है, सिर्फ वेन्स नजर आ रही है, बाकी जो क्लोरोफिलस एरिया दैट इज eaten by some insects. Okay, so it means this is the skeleton of leaf. You can say it as a veins and veins are the skeleton of leaf.
So from this, I think you can write the definition of leaf, what are its parts, define pulvinus, what is the function of petiole, what is lamina, what are the functions of lamina, define the general functions of leaf, what is transpiration, what is gas exchange, okay. So and what is photosynthesis, how these leaves are modified, तो वो हम आगे कर लेंगे मॉडिफिकेशन वाला, ओके। तो फिलहाल आपको इसके पार्ट्स करने हैं, फंक्शंस करने हैं, और इसके लीफ बेस का जो है वो कहाँ पे अराइज होता है, लीव्स के जनरल फीचर्स इसमें, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो लेट्स डिस्कस नाउ द टाइप्स ऑफ लीव्स, ओके। सो लीव्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। अब आपको लैमिना का पता चल गया, ठीक है। इफ द लैमिना इज कंप्लीट अप टू द मिड रिब, जैसे अभी आपने उसका देखा था ना पीपल का, लेट मी शो यू, इसमें, ठीक है। तो वो जो लैमिना है इस केस में देखो, ठीक है, पूरा मिड रिब ऊपर तक जा रहा है और इसका लैमिना डिवाइडेड नहीं है, कंप्लीट है लैमिना, ठीक है, पूरे लीफ को कट नहीं किया इसने। सो दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज सिंपल लीफ, ठीक है। एंड देर इज नो इंसिजन, कोई कट नहीं है, तो हमने इसको डायग्राम में ऐसे बनाना, कंप्लीट ओनली वन लैमिना इज देयर, सो सच टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज सिंपल लीव्स। नाउ कम टू द कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स में जो लैमिना है वो आगे डिवाइड कर सकता है। अब वो आगे डिवीजन भी दो तरह की कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख देंगे कि लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस एंड नोन एज लीफलेट्स। देखने में एक्चुअली वो था एक लीफ, लेकिन उसके लैमिना को कट कर दिया उसने। जैसे मैं बोलूँ कि ये लीफ है, तो इसको यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, ये चीज़ कट हो जाए, इसकी लैमिना कट हो गया, ठीक है। तो उसमें हम एग्जांपल दो टाइप्स लेंगे, लैमिना कैसे कैसे कट होता है, पिनेट कंपाउंड एंड पामेट कंपाउंड, ओके। जब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन कॉमन स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक लीफ है, पूरा लीफ था, लेकिन उसने कट कर करके छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए, तो इट मीन्स लैमिना इज डिवाइडेड नाउ। जब लैमिना डिवाइड हो गया तो ये स्ट्रक्चर बन गई, सी, ओके। ये पूरा एक लीफ था, एक्चुअली इट वाज कंप्लीट लीफ, और उसने कर क्या दिया, इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, इधर भी लीफ है, लीफ लीफ लीफ, लेकिन दीज आर नॉट नोन एज लीव्स, दीज आर नोन एज लीफलेट्स नाउ, ओके। रोज को देखो आप ध्यान से, रोज को ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये रोज के जी 5 प्लांट उसके हैं लीव्स, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ओके। देखो इसका, अब आपको लगेगा कितने लीव्स हैं, ठीक है, तो यहाँ भी एक होगा, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल कितने होंगे, 5, आपको लगेगा 5 लीव्स हैं, एक्चुअली दीज आर नॉट लीव्स, दिस इज ओनली 1 लीफ। तो ये पूरा एक लीफ था, तो उसका जो लैमिना था दैट वाज कट इनटू 5 टाइम्स। लैमिना इज इंसीज कर दिया, लैमिना को कट कर दिया, इंसाइज्ड हो गया। तो इंसाइज्ड होने के बाद इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके। सो 1 होल लैमिना, 1 मिड रिब, ओके, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल लीफलेट्स। अब जो बीच वाली जो मिड रिब थी उसको हम मिड रिब नहीं बोलेंगे, अब एक ही कॉमन पॉइंट पे हैं ये सारे, these all are attached at one common point, and this point is known as, this hole is known as, or this support to these leaflets is known as rachis, okay। so rachis, और छोटे छोटे लीव्स को हम क्या बोलेंगे, अब लीव्स नहीं बोलेंगे, मतलब लीफलेट्स बोलेंगे। एंड दिस इज ओनली 1 लीफ ऑफ रोज, एक ही लीफ है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ओके। सेकेंड इज पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली मतलब पाम जैसा, ठीक है। पामेटली का मतलब कि जो मिड रिब थी इसमें तो जैसे पूरा पूरा उसने कट लगा दिया, ठीक है। एक कट इधर लगा दिया, एक लीफ बन गया, दूसरा कट इधर था, दूसरा हो गया, तीसरा कट इधर था। इसमें कट करते करते वो कहीं रुक जाता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। इस केस में नहीं, एक लीफ लेते हैं इसको, इस केस में देखो, ठीक है, पीछे से ज़्यादा आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। ये देखो, तो ये कट लगने लगा था, यहाँ से कट होना था एक्चुअली। अगर कट हो जाता तो हम इसको अलग अलग लीफ हो जाते, लीफलेट्स, तो ये अलग नहीं हुए। तो जो लैमिना है दैट इज नॉट कम्प्लीटली इंसाइज्ड, पूरा पूरा कट नहीं हो, आते आते यहाँ पे रुक गया, नहीं तो यहाँ तक कट आना था। एंड इट इज गिविंग अ पाम शेप स्ट्रक्चर, सो दिस इज नोन एज पामेटली कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ है, ओके। सो दिस इज नोन एज पामेटली कंपाउंड लीफ। इसको कैसे ड्रॉ करोगे,
ऐसे आपने एक ही लीफ शो किया और इसके लीफलेट्स सारे एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसमें क्या था, लीफलेट अलग अलग पॉइंट पे लगे थे। पिन्नेट लीफ वाले में लीफलेट्स अलग अलग पॉइंट पे थे, इसमें लीफलेट्स एक ही पॉइंट पे थे और एक ही स्टॉक है, उनकी एक ही डंडी है, देखो ये एक ही स्टॉक है एंड दिस इज नोन एज पीटियो। ओके, सो लीव्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव। सिंपल में लैमिना कट हुआ ही नहीं है, नॉर्मल है, और कंपाउंड में लैमिना कट हुआ है। अगर वो छोटे छोटे पीसीज में कट हुआ पूरा का पूरा अप टू डिफरेंट पॉइंट्स तक और एक कॉमन स्ट्रक्चर पे जाके छोटे छोटे लीव्स लग जाए, लीफलेट्स बन जाए, देन इट इज नोन एज पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और अगर वो पूरा साइज नहीं करता है और ऑल द लीफलेट्स आर अरेंज्ड एट वन पॉइंट, देन इट इज नोन एज palmately compound leaf. Okay, so let's move to the next topic now. So let's move to the now types of venation. Okay, leaf venation means arrangement of leaves के ऊपर जितने भी arrangement of veins on the leaves is known as venation. तो ये जो हमने पहले देखा था, ठीक है। So this is all about types of venation. ये कैसे अरेंज है? अगर तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाती हैं, देन रेटिकुलेट वेनेशन, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, ठीक है। वेन्स एंड ये सारे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बीच में, जो छोटे वाले वेन्स भी हैं। ओके, वेनलेट्स एंड वेन्स, ऑल दीज आर क्रॉसिंग विद ईच अदर्स एंड फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक पैटर्न, सो दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। सो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लैमिना इज नोन एज वेनेशन। और अगर वो नेटवर्क होगा तो नंबर 1 इज रेटिकुलेट वेनेशन। तो नॉर्मली जैसे आप लीफ ड्रॉ करते हो तो उसमें आपने ये वेन्स बना दी, मिडरिप बना दी, वेन्स बना दी, वेन्स की आगे ब्रांचेस बना के इसको थोड़ा इंटरमिक्स सा कर देना, ठीक है। सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। जितने भी हमारे डाइकोट प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं डाइकोट लीव्स, दे ऑल आर हैविंग दिस टाइप ऑफ वेनेशन। सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल में नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल में जितनी भी वेन्स होंगी दे आर अरेंज पैरेलली। अब इसमें देख लो आप ग्रास में, ठीक है। तो सी है ग्रास में आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिल रहा, सारी की सारी क्या है, पैरेलल लाइंस। ओके, सो इसकी बैक साइड पे भी आप देख लो, ऑल द वेन्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस इज पैरेलल वेनेशन। ये ग्रास में मिलेगी आपको जैसे मोनोकोट्स में। ओके, तो आप वीट की देख सकते हो, राइस की देख सकते हो, किसी की भी ग्रास की देख लेना। सो दिस वाज अबाउट वेनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है फिलोटैक्सी। ओके, फिलोटैक्सी का मतलब कि लीव्स स्टेम के ऊपर कैसे लगे हुए हैं, किस पैटर्न में लगे हैं, ठीक है। सो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज फिलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। ओके, सो इसकी 3 टाइप्स हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट में नाम से क्लियर है, अल्टरनेट मतलब एक लगा उसके सामने दूसरा नहीं लगा कहीं और, मतलब अल्टरनेटिव, वन इधर और एक इधर, ठीक है। लेट मी शो यू सम प्लांट्स हियर। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल यही देख लो आप, ये है हमारे पास सनफ्लावर। ओके, इन केस ऑफ सनफ्लावर सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज, एक यहाँ पे है, सो एट वन नोड देयर विल बी ओनली वन लीफ। ओके, एट वन नोड देयर विल बी ओनली वन लीफ, ठीक है। तो सिंगल नोड पे सिंगल लीफ रहेगा। सो इसके एग्जांपल हम ये मान के चलेंगे, दैट इज सनफ्लावर। पीपल के ट्री में भी आप देख सकते हो, ठीक है। पीपल का भी मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जैसे सपोज दिस इज होल ब्रांच, ये देख लो आप। ओके, ये हमारे पास पूरी ब्रांच मतलब एक पार्ट में लाई हूँ। तो इस ब्रांच में देखो एक जगह पे एक ही लीफ है, एट वन नोड देयर इज ओनली वन लीफ। इधर फिर इधर, इधर फिर उधर वाला हमने तोड़ दिया अभी, ठीक है। फिर इस साइड फिर दूसरी साइड। सो दिस पैटर्न, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अल्टरनेट। कौन सी फिलोटैक्सी है? अल्टरनेट फिलोटैक्सी। ओके, इसके और भी एग्जांपल है, चाइना रोज देख लो आप, ठीक है। चाइना रोज का ये है, इसमें भी देख लो। चाइना रोज में कैसे देखो, वन लीफ एट वन नोड, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप जूम करके देख सकते हो, फोकस कर लेना, ठीक है। वन लीफ एट वन नोड, वन लीफ एट वन नोड। और ध्यान से देखो, इतना पोर्शन देख लो ध्यान से, देखो एक इधर है और दूसरा यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। और दिस इज नोन एज अल्टरनेट फिलोटैक्सी। आई थिंक आपको तीनों एग्जांपल्स ये इसकी क्लियर होगी। सनफ्लावर भी है, पीपल ट्री का भी हो गया, चाइना रोज भी है, मस्टर्ड का भी आप देख सकते हो, उसमें भी ऐसे ही होगा। ओके,
Now come to the second type, that is opposite phyllotaxy. Opposite में means दोनों जो दो leaves होंगे एक node पे opposite होंगे. कैसे? So let me show you one example here. So in case of opposite phyllotaxy, it is very much clear from this guava leaves. See, this is one branch and two leaves are present opposite to each other at a single node. किसी को भी आप देख लो, इधर से भी देख लो चाहे, ठीक है. So two leaves are present, single node है, एक इधर लगा हुआ और एक इस साइड लगा हुआ. So this type of phyllotaxy is known as opposite phyllotaxy. Now let's move to the third type. Third type is whorled. whorled मतलब जब एक ही नोड पे एक से ज़्यादा लीव्स, दो से ज़्यादा लीव हो, ठीक है. तो उसमें एग्जांपल एल्स्टोनिया की है, आपकी बुक में एल्स्टोनिया की एग्जांपल भी दी हुई है एनसीईआरटी में. और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक और भी है मेरे पास एग्जांपल. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ नीरियम. ओके, सो यहाँ पे भी देखो एक नोड पे तीन लग रहे हैं. सी है 1 2 3 एक नोड पे, और यहाँ पे भी देखो. तो एक नोड पे जब बहुत सारे लीव्स अरेंज हो जाते हैं, इसकी टिप देखो, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज नोन एज whorled phyllotaxy. गुच्छा बन जाता है पूरा. So this was all about the phyllotaxy. Okay, venation हो गया reticulate and parallel. और phyllotaxy में arrangement of leaves on stem और branch is known as phyllotaxy. इसकी तीन types हैं हमारे पास, alternate, opposite and whorled. ओके, तो alternate में एक नोड पे एक and alternatively, और opposite में वन नोड पे दो होंगे और दोनों opposite, और whorled में एक ही नोड पे more than 2 to many leaves can be there. Okay. So it was all about leaf, its type, its size, its structure, its functions, and the types of leaves, pinnate, compound, and all that. And then last was this leaf venation, and then phyllotaxy. Okay, for any query you can call me at any time.